To watch this topic in Hindi, skip the video to 2 minutes and 45 seconds. Hello everyone. Welcome to another episode of Legal Update, a new initiative of Drishti Judiciary. Today's topic of discussion is summoning a defense witness. First, let us see why is it in the news. Recently, the Supreme Court ruled in Sundar Lal versus the state of Uttar Pradesh and others that a witness listed by the prosecution but not called for examination can be summoned as a defense witness. Let's look at the background of the case. In Sundar Lal versus the state of Uttar Pradesh and others, the appellant's wife died by suicide after ingesting poison. Allegations of dowry harassment were made by the deceased relatives. The charge sheet was filed under relevant sections of the IPC and Dowry Prohibition Act. The deceased brother Pradeep was listed as a prosecution witness but was discharged without examination during the trial. The appellant sought to summon Pradeep under Section 233 of the CRPC, but both the trial court and the High Court dismissed the application. However, the Supreme Court later allowed the appellant's appeal. The court's observations were as follows. The Supreme Court, with Justices M.M. Sundaresh and S.V.N. Bhatti, found fault with the lower court's decision to deny the appellant's request to summon a witness not examined by the prosecution. The Supreme Court observed that since the prosecution discharged the witness without examining him, there is no legal restriction on summoning him as a defense witness, allowing the appellant to do so. Let us now discuss the legal provisions. Section 313 of CRPC permits the court to question the accused without prior warning, particularly after the prosecution witnesses but before the accused presents their defense, without administering an oath with the answers being admissible as evidence. The court may seek assistance from the prosecutor and defense counsel, and a written statement by the accused can fulfill the examination requirement. Let us know what is Section 233 of CRPC. It applies to trial before a court of session. When accused not acquitted under Section 232, they must enter their defense and present any supporting evidence. If the accused submits a written statement, the judge files it with the record. If accused requests a process to compel witness attendance or document production, judge shall issue unless it's deemed vexatious or for delaying justice with reasons recorded. Before we wrap up, here's a question for you. Where does Section 233 of the CRPC apply? High Court trials, trial before a magistrate, trial before a court of session, or civil court trials? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, दृष्टि जुडिशरी की नई पहल लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है बचाव पक्ष के गवाह को समन करना। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा सूचीबद्ध लेकिन परीक्षण के लिए नहीं बुलाए गए गवाह को बचाव गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में अपीलकर्ता की पत्नी की जहर खाने के बाद आत्महत्या से मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों की ओर से अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में मृतक के भाई प्रदीप का उल्लेख किया गया था। हालांकि मुकदमे के दौरान प्रदीप को अभियोजन पक्ष द्वारा बिना पूछताछ के आरोप मुक्त कर दिया गया। अपीलकर्ता ने प्रदीप को बुलाने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 233 के तहत एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और यहां तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं किए गए गवाह को बुलाने के अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के निचली अदालतों के फैसले में गलती पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने गवाह की जांच किए बिना उसे आरोप मुक्त कर दिया, इसीलिए उसे बचाव गवाह के रूप में बुलाने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है जिससे अपीलकर्ता को ऐसा करने की अनुमति मिल सके। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ कानूनी प्रावधान। सीआरपीसी की धारा 313। यह धारा अदालत को बिना किसी पूर्व चेतावनी के आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति देती है, खासकर अभियोजन पक्ष के गवाहों के बाद। लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपना बचाव प्रस्तुत करे, उसे शपथ दिलाए बिना जवाब सबूत के रूप में स्वीकार्य होंगे। अदालत अभियोजक और बचाव वकील से सहायता मांग सकती है और अभियुक्त का एक लिखित बयान परीक्षण की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। चलिए जान लेते हैं सीआरपीसी की धारा 233 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 233 को अध्याय
18 के अंतर्गत सत्र की अदालत के समक्ष मुकदमा शीर्षक से जाना जाता है। इसके अनुसार जहां आरोपी को धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है, उसे अपने बचाव में प्रवेश करने और उसके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान देता है तो न्यायाधीश उसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा। यदि अभियुक्त गवाह की उपस्थिति या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया का अनुरोध करता है तो न्यायाधीश इसके कारणों को दर्ज करते हुए तब तक जारी करेगा जब तक इसे कष्टप्रद या न्याय में देरी के लिए नहीं माना जाता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सीआरपीसी की धारा 233 कहाँ लागू होती है? उच्च न्यायालय परीक्षण, मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा, सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा या सिविल कोर्ट ट्रायल। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।